Welcome to the third episode of Yuva Adyantara Spotlight series. This is brought to you by Adyantara. Adyantara is an organization that promotes Indian art and culture. And in Adyantara, we have a Yuva Adyantara series. In this series, we bring new artists, young talented artists, talented writers to you, where we talk with them about their art forms, why do they love it, what fuels their passion, what keeps them going. So basically anything and everything about it. और आज के हमारे दो खास मेहमान हैं सभ्या एंड खुश. Both of them are poets and let's begin. Let's get to know them. We'll begin with the introductions first. Sabhya, please go on and introduce yourself. Hi everybody on board. Myself Sabhya Mishra and my pen name is Sabhya Asha Mishra. It's my mother name that I include when I write. Currently, I'm pursuing my master's with English as my domain from the Central University of Haryana, and I've completed my bachelor's from University of Delhi. I have started writing when I have passed my 12th class. Being an anthrophile and an animal lover by nature, the central theme of my poems is basically society, love, and how love can be found everywhere. Love is such a beautiful feeling, and my inspiration for writing is my family. It's my family that has inspired me, and of course, my friends around me who has always, whenever there is certain sort of hindrance, it's them only who have removed it, and they have read all of my poetry. It doesn't matter how bad it was written, they have always appreciated me. Whatever I'm writing is in replica of their support. So, yeah, thank you. Looking forward to know you all better. Wow. खुश, आपकी बारी. नमस्ते। आप सभी को मेरी तरफ से एक गुड आफ्टरनून। मेरा नाम खुश शर्मा है और मैं अभी करंटली बीएचयू से सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ मेरा। और मैं बेसिकली राजस्थान के एक अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि मेरी प्रेरणा जो कि मैं लिखने के लिए जो हुई है, वो बहुत ही विचित्र मगर मज़ेदार है कि मैंने जो अपना लेखन जो था वो अपने इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से शुरू किया था। मुझे ये लगता था कि अगर मैं लिखना शुरू करूंगा तो लोगों से मुझे बात करने में कॉन्फिडेंस आएगा और मैं अच्छे से लोगों से बात कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने लिखना जो था शुरू किया, तो लोगों को पसंद आया, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे दोस्तों ने, और कहा कि लिखा कर। तो ऐसे शुरुआत हुई इसकी। और मैं मोस्टली जो है सोशल इश्यूज के ऊपर लिखता हूँ और स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं उनके ऊपर लिखता हूँ। ओके. सभ्या, आपके बारे में एक बात हमें पता है कि आपने कुछ किताबें को ऑथर भी की हैं. तो जब हम कोई किताब ऑथर करते हैं, जब हम कोई किताब को ऑथर करते हैं, दोनों में थोड़ा फर्क होता है. इसके बारे में बात कर सकते हो? क्या लर्निंग्स हैं आपकी एज अ को ऑथर? Yeah, I think it's very different when we publish something as an author, and it's entirely very different when we publish something as a co-author. Because when you're writing as a co-author, you always feel like that you just have to write a piece of that poem, or you have to just give your particular connotations to that book. But in reality, the burden is always the greater, because you have to seek into the perfection. If you Because you won't feel like that if you're writing a part, so that part should be so perfect that the anthropology or the book in which you are constituting your part should look good. Because so you always have a burden at your back that whatever you're writing should dwell into the state of perfection, so that your particular piece would not ruin the entire book. And it's a big role. And when you're authoring something, it's the entire burden is on you. But when you're co-authoring, still you're writing just a piece, but the burden feels heavier because you have to perfect that particular piece. And you always want people to recognize you not as a co-author, but the author of that particular piece. So it's a big role, and of course it's a very big responsibility. वेल सेड सभ्या, इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. खुश, आप बहुत सारे ओपन माइक्स कर चुके हैं. तो ओपन माइक्स की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में कुछ बताइए. ओपन माइक्स की शुरुआत का रीजन भी सेम ही है कि मुझे लोगों से मिलना था जिससे मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ लोगों से। और मेरी जो एक अंदर एक डर है, एक झिझक है जो खुले लोगों से मिलने से। तो जैसे जैसे मैंने शुरुआत की लोगों से मिलने का, तो उन्हें उन्हें मेरी पोम्स पसंद आने लगी। वो मुझे मेरे पोम्स के टाइटल से जानने लगे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस स्टेज पे। और जब भी मैं अगली बार उनसे मिलता हूँ तो वो मुझे उस पर्टिकुलर टाइटल के नाम से ही जानते हैं कि हाँ, ये वो है जिसने वो वाली पोएम पढ़ी थी। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। इसलिए मैं और भी जो जितने भी मुझे पॉसिबल पॉसिबल मिलते हैं, इवेंट्स में जाने का मौका मिलता है, वो मैं सारे जाता हूँ
कोशिश करता हूँ कि मैं सब में जाऊं। ओके खुश। खुश, आपने बताया आपकी इंस्पिरेशन रही हैं सोशल इश्यूज। तो किसी एक सोशल इशू पर आपकी कोई कविता आप सुना पाए? ये थोड़ा फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव में ही लिखी थी मैंने, जो कि एक बेसिक शुरुआत होती है एक इंसान की। तो ये एक्चुअली मैं इसका कंटेक्स्ट भी देना चाहूंगा कि क्यों मैंने ये लिखी थी। मतलब मैं एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे जो होता है, फेमिनिज्म नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं होता है। तो बातों में भी उनके वही होता है कि नहीं, लड़की की 22-23 की उम्र हुई तो शादी कर दो उसकी, उसको तो एज अ लाइबिलिटी वो लोग लेते हैं। तो मैंने उसके ही कंटेक्स्ट में कुछ लिखा था, क्योंकि मेरी जो थिंकिंग है वो काफी हद तक चेंज हुई है विद टाइम। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा कंट्राडिक्ट करता हूँ। तो कुछ ऐसा लिखा था मैंने कि सामाजिक दर्पण के समक्ष खड़ा हूं मैं, ऊंच नीच के पैमानों को गहराई से पढ़ा हूं मैं, और शर्म से तब भर गया पूरा जमीर मेरा, जब समझ आया कितने विशेषाधिकारों से भरा हूं मैं। विशेषाधिकार मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? प्रिविलेजेस। प्रिविलेज, हाँ। तो उससे आगे ये है कि मैं उस चीज पर गर्व कैसे करूं आखिर, जो मिली है मुझे पाई नहीं है मैंने। मुझे सिखाई गई है बातें अनेक, मगर गर्व है मुझसे छोटों को सिखाई नहीं है मैंने। हाथ से निकल जाती है तो निकलना अच्छा है, हाथ से निकल जाती है तो निकलना अच्छा है, सब जानने के बाद तो स्वयं पितृसत्ता की बुराई की है मैंने। गर्व तो नहीं मगर मैं शुक्रिया अदा कर दूं, तराजू पर बराबर दोनों को सदा कर दूं। अगर मिल जाए एक मौका दुनिया सुधारने का, तो सबसे पहले ये भेद जुदा कर दूं। बदल दूं तौर तरीके कुछ पल के लिए, पुरुष को बनाकर दास मैं स्त्री को खुदा कर दूं। वाकई में बहुत सुंदर कविता है और रेलेवेंट है आज भी। पहले भी थी, आज भी है, शायद आगे भी रहेगी। बात करते हैं सभ्या से। सभ्या, आपकी पोएम्स का आपने बताया थीम यूजुअल रहता है लव, लव अमंग ह्यूमंस, लव अमंग एनिमल्स, लव फॉर एनिमल्स। तो आप ऐसी बेस्ड ऑन लव कोई अपनी कविता सुनाएंगी? I would like to give a context first. Basically, it's a love story. I've written it. It's a personal experience. It's a first-hand experience, and I have written it. It's based on interreligious love story. There are two people who are madly in love, but the society, the religion intervenes, and it's become a rival. So it goes like this. मेरी दुकान के पार एक दुकान थी, मैं उसका रांझा, वो मेरी हीर के समान थी। उसको देखकर मैं मन मन मुस्काता हूँ, देखती है मुझे, मैं अपने जज्बात छिपाता हूँ। लेकिन धीरे धीरे यह एहसास चेहरे पर झलक गया। मैंने छुपाया बहुत मगर उसे सब दिख गया। आ गए करीब बातों और जज्बातों से, होती थी बातें, न रहा कोई ताल्लुक न दिन से न रातों से। एहसास नहीं हुआ एक दूसरे की धर्म जाति का, मिटा दिए सारे भेद कि शायद मांगे हाथ वो इस साथी का। बचपना कहो या कहो मोहब्बत, खोने से पहले मैं डरता हूँ। बेशुमार इश्क मोहब्बत प्यार मैं उससे करता हूँ। पर कहाँ अब सच का सामना करना पड़ेगा मुझे। ये धर्म जाति के मसलों को समझना पड़ेगा मुझे। शायद किसी दुनिया में साथ हो हम, शायद उसी के लिए बिछड़ना पड़ेगा हमें। हो सकता है तू हिम्मत दिखाए तो हम साथ आएंगे, एक दूसरे से दूर तो नहीं रह पाएंगे। मना लेना तुम सबको, मैं इधर सब संभाल लूंगा। एक बार भरोसा कर ले, मैं जीवन भर तेरा साथ दूंगा। भुला दे सब कुछ तो थोड़ा खुद का सोच, मैं प्यार हूं थोड़ा तू मुझे मुड़ कर दे। रह लेगी क्या मेरे बिना, एक बार खुद से पूछ। नहीं आ रहा दिल में थोड़ा सा, मेरे लिए ही सोच ले, शायद थोड़ी हिम्मत से हम साथ आएंगे। जी लेंगे साथ तेरे, हम साथ में मर जाएंगे। ये दुनिया तेरे मेरे किस्से गाएगी, लेकिन क्या ही रांझा की कहानियां अपने बच्चों को सुनाई। थैंक यू। आई मीन बहुत सुंदर कविता लिखी है। Kush, I want to ask you something because I relate to you. I also write about feminism. हम्म। So you wrote it very beautifully. Or basically, I want to talk about your poem only. So, matlab, how do you think you can change the coming generation या जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, आप उनको कैसे बदल सकते हैं अपने विचारों से, जो आपने कविता पढ़ी? जैसे कि उस लाइन में भी एक लाइन, उस जो पोम थी उसमें एक लाइन थी भी कि मगर गर्व है मुझसे मुझे कि मुझसे छोटों को सिखाई नहीं है मैंने। तो शुरुआत वहीं से होती है, जब हम जो चीजें, जो टॉक्सिक ट्रेट्स हम पास नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो सोसाइटी से मिटने लगते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी जो टॉक्सिक पेट्रियार्की होती है उसको कभी भी सपोर्ट नहीं होगा।
और चाहे मुझे कितना भी कोई हेट मिले, घर से हेट मिले, कहीं से हेट मिले, आई नो मैं कौन से एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि मेरी एक ही लाइफ है। मैं जैसे चाहता हूँ, जिस नेचर का मैं हूँ, मैं उसी नेचर को अपने लोगों को दिखाऊं, और मैं अपनी जनरेशन को, अगली जनरेशन को दिखाऊं, जिससे मैं एक सोसाइटी में चेंज लाने में हेल्प कर सकूं। तो इट्स गुड नो, जनरेशन्स बदलती हैं। और सबसे पहले जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट, हम्म। it's about कि men are also supporting feminism. हम्म। And Sabya, for you, I want to ask कि which which one do you like the most? I mean, do you like just तुम खुद लिखना पसंद करोगी, या फिर को ऑथर ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है तुम्हारे लिए? It depends on the subject entirely because, like, when I am into a subject that is not my domain, so of course I would like to perfect to shape that thing as a co-author. But if there is certain times when when I want to write something autobiographically, then I would definitely want to be the author. For example, it's my big dream. Of course, I'm a little girl with big dreams. So I want to publish a book about my mother. So I would like to author that book, and with the title will be her name, of course. So I don't want to act as a co-author in that particular book. So it depends on the events for which I'm authoring, for which I'm writing. If it's my domain, then I would love to be the author. But if I feel like that I think I lack here, so I would like to, I would love to learn that thing first, and then I would like to author it. Okay, thank you so much for your answers. आप दोनों इतना लिखते हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपने विषय को समझते हैं। लोगों में, पाठकों में, या जो लोग नहीं भी किताबें पढ़ते हैं, कोई ना कोई राइटिंग को लेके कोई भ्रम रहता होगा। शायद आपने सुना भी हो। कोई एक ऐसा भ्रम जो आप तोड़ना चाहें? खुश, आपसे बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि सोसाइटी इस स्टेज पे आके पहुंच चुकी है कि उनके हिसाब से साइंस, मैथ्स और बायोलॉजी, ये जो लोग लेते हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। और लिटरेचर जो होता है, जो कविताओं में इन्वॉल्व होता है, उसको वो लोग ये मानते हैं कि उसको कुछ नहीं मिल रहा तो वो ये कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। एक आर्ट फॉर्म है जिसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि जो पढ़ता नहीं है वो कविता लिख सकता है। कविता लिखना बहुत सोचने वाला काम होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है दिमाग का। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं करियर जो है मेरा परस्यू करके ये बता सकूं लोगों को कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज जो है हम परस्यू कर सकते हैं, और इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो जो पढ़ना लिखना कम जानते हैं, थोड़ा कम पढ़ते हैं, वही ये सब इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। टॉकिंग टू यू सभ्या, खुश ने बात की ही वांट्स टू परस्यू राइटिंग एज अ करियर। सभ्या, व्हाट डू यू थिंक, राइटिंग एज अ करियर आप करना चाहेंगे? First, I want to break one stereotype that people generally have about writing, and they think कि जिन लोगों का दिल टूट जाता है, they write. And I have heard it from everywhere. Do you have some breakup? Are you going through something? What's wrong with you? Are you having some family trauma? But I think writing is a beautiful form of expression. It's a beautiful form of impression. And it's not always necessary कि कोई दिल फेंका आशिक हो, किसी का दिल टूटा हो, कोई सदमे में हो, तभी वो लिखे. It's such a beautiful form that anybody can write. And it's a way of expression. If you want to express yourself, the best thing that you can do is writing, because nobody's gonna judge you. It's your genre, it's your space. So you can simply do whatever you want to do. And your second question, that would I like to pursue writing as a career? So I think no. I'll keep it as my passion only, because I think when we invest too much into something, it always starts eroding. And I don't want to erode my passion. But yes, of course, in the coming future, I would love to write a book, as I have already mentioned, that I would love to write a book about my mother, because, and also the title will be her name, of course. And I'm currently working over it, because if ever I'll publish my book as an author, so the first book will be dedicated to my mother only. So yeah. It's so sweet, Sabya, talking about your mother. Your parents do support you. एंड जब आपकी पहली कविता जब प्रिंट हुई या आपने ओपन माइक में किया हो, आपकी मम्मा का, पापा का क्या रिएक्शन था? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? They're not so expressive actually. But I'm blessed with an amazing sister.
So she's like my all-time supporter. And even though the poetry was not good, I still remember the first poem that I has written was dedicated to my mother only. She loved that poetry, but she just couldn't express it. So she just simply cried and got to know ki, yes, I have achieved something. The poem is really beautiful. And to her tears, my sister has given the words that it's an amazing work. सो स्वीट। खुश, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब पहली बार आपने कोई प्राइज जीता हो? तब प्राइस तो 1-2 साल 2-3 साल होने के बाद में मिला था मुझे। बट जैसे पहले एंथोलॉजीज में नाम दिया था मैंने, तो उसमें मेरी मेरी पोम्स छप गई थी उसमें। तो उस पे भी मेरे पापा बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ कुछ अच्छा कर रहा है। उनके हिसाब से ये है कि मैं कुछ गलत काम ना करूं, सही काम कुछ भी करूं। मैं दुनिया में चाहे कोई सा भी काम हो, पर सही होना चाहिए, वो एथिकली सही होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कभी भी ऐसे डिमोरलाइज नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ हमेशा आगे बढ़। बट उनका ये रहता है कि जो परसेप्शन मैंने बताया कि लिटरेचर के बारे में होता है कि लोग कम पढ़ने वाले होते हैं, वही। तो उनका ये मानना है कि मैं करियर, एक जो होता है, एक डेफिनाइट जॉब चुनूं, उसको मैं ले लूं, उसके उसके साथ साथ मैं इसको चलाता रहूं, ये होता है। और लास्ट ईयर दिसंबर में एक कंपटीशन हुआ था, ऑनलाइन कंपटीशन था वो। अबाउट 60 पोइट्स थे उसमें जिन्होंने अपनी अपनी पोइट्रीज लिखी थी। ओपन थीम थी सबकी। तो मैंने एक मणिकर्णिका, एक स्पेसिफिक टाइटल की पोम थी जो कि मैंने उसमें दी थी। और वो, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज में 500 रुपये जीते थे। तो वो मैंने घर पे जाके पापा को दे दिए थे। तो उन्होंने वो पैसे जो थे लॉकर में संभाल के रख दिए किसी लिफाफे में, कि उसको मैं कभी खर्च नहीं करूंगा, वो एक तरह से प्रिजर्व रहेगा 500 का नोट हमेशा। तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि पापा ने कैसे संभाल के रखा। आई मीन दे आर सपोर्टिंग यू, बहुत अच्छी बात। तो अब हाँ, जब बहुत ज्यादा। कविताओं की इतनी बात हो रही है, कविताओं की इतनी बात हो रही है, तो एक और कविता सुनाइए प्लीज, कोई सी भी आपकी पसंद की। जो है, मैंने अभी रिसेंटली, जब कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो उस दिन मैंने श्री कृष्ण के ऊपर ही लिखी थी। तो इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि शंख चक्र गदाधारी, फिर भी बांसुरी ही सबसे प्यारी। हंसमुख चेहरा जिस पर मोहित दुनिया सारी, किसी के मोहन है किसी के बिहारी। अर्जुन का माधव सा मित्र वो, कचरे के ढेर में जैसे इत्र वो। जिसे पिता तक ने ठुकराया पैदा होते, उस अभागी द्रौपदी का मित्र वो। इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने लिख दिया था ये लाइन, बट बाद में मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था। वो किसी, महाभारत क्या है, बहुत सारे टेक्स्ट में लिखी हुई है। तो अलग अलग टेक्स्ट में कुछ कुछ बातें जो होती हैं वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं। तो उसलिए मैंने लिख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हुआ था। तो आगे है कि जिसे पिता तक ने ठुकराया पैदा होते, उस अभागी द्रौपदी का मित्र वो। देवकी नंदन यशोदा का लाल वो, जुए में हारी द्रौपदी की ढाल वो। धर्मधारी मनुष्य का सबसे प्रियतम साथी वो, मगर अधर्मी के मस्तक पर बैठा काल वो। बच्चों के लिए एक चंचल कान्हा, बड़ों और बड़ों के लिए ज्ञान से भरा ताल वो। चंचल मन का हर जवाब हर सवाल वो। धनवान की थाली में 56 भोग वो, और दीन की कटोरी की स्वादहीन दाल वो। सुबह से शाम बस कृष्ण कृष्ण, मेरा हर क्षण में एक समान मन का हाल वो। मेरा शिव ब्रह्मा मेरा राम वो, कोई तंतु कोई हड्डी नहीं मेरे तन में तमाम वो। This is what I have written in the recent Women's Day, and I've dedicated it to my sister and my mother, of course. मैं क्या हूँ बिन तुम्हारे, क्या ही पहचान है मेरी। आशा की बेटी सुधा की बहन, बस यही जुबान में है मेरी। मैं जो भी हूँ वो स्वरूप है तुम्हारा। मेरे लिए नारी शक्ति का अर्थ है तुमसे। हिम्मत संस्कार इज्जत की पहचान है तुमसे। मेरे लिए तुम काली दुर्गा सरस्वती अम्बा की तरह। तुम मेरे सारे अरमान है तुमसे। मैं लिखूं कैसे लिखूं, मेरे लिए तुम माँ भी तुम, दोस्त भी तुम, हमसफर भी तुम। मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने, मेरे लिए बलिदान की देवी तुम। जान मेरी पहचान मेरी, तुम मान मेरा, मेरे लिए झांसी की रानी तुम। मैं मौन रहूं तुम सुन लो मेरी वो आवाज तुम। जिसके होने से फर्क पड़े मुझे, मेरे लिए वो समाज तुम। सही गलत अच्छा बुरा, मेरे लिए सबका पथ तुम। गीता कुरान की बातें उनका सच्चा पाठ भी तुम। मेरे लिए मैं क्या हूँ बिन तुम्हारे, क्या ही पहचान मेरी। आशा की बेटी सुधा की बहन, बस यही जुबान में। I dedicated it to my sister and my mother. Such a heartfelt tribute to both sister and mother. तो
मैं खुश से पूछना चाहूंगी कि मतलब जैसे आप स्त्रीवाद पर लिखते हैं, फेमिनिज्म पर, तो हम्म। कौन सा पोएट या फिर ऑथर आपके इंस्पिरेशन है, या जिन्हें पढ़ना आपको पसंद है कि ये विमेन के बारे में लिखते हैं, आप उनसे इंस्पायर हुए हैं? एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी किसी फेमिनिज्म पर्टिकुलर टॉपिक में किसी भी पोइट की कविताएं कभी पढ़ी नहीं है। ये बस एक बेसिक एक्सपीरियंस है। और मैं एक गॉड्स ग्रेस मानता हूँ कि मेरे पास एक डिक्शनरी है वर्ड्स की, जो मैं कभी भी चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ उनको, उनके साथ खेल सकता हूँ एक्चुअली। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा अनयूजुअल दिखता है सोसाइटी में, जो कि बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग होता है, हेट्रेड टूवर्ड्स वुमेन कुछ भी कह सकते हैं, तो उसको लेके, उस पर्टिकुलर चीज को लेके मैं लिख देता हूँ फ्री फ्लो में। तो इंस्पिरेशन जो होती है वो मुझे मेरे आसपास के एनवायरनमेंट से मिलती है। Thank you so much for this. And Sabha, I want to ask, have you ever experienced writer's block? And how do you overcome it? Yeah, I think it's a very common feeling that sometimes I want to write, I want to express my thoughts, I want to write something, but there's some hindrance in my mind. I can't get words, maybe I can't get the that sub feeling that I have to write it something. And at that time, my friend, one of my very special, my very close friend, is like Lord Shiva to me. He always guides me well. And whenever there is some hindrance and I feel very underconfident that no, I can't write, this is not going to my genre, I can't participate, I can't speak, I don't have the correct dictionary of words. So there are people around me who are always there to guide me, be it my sister, be it my mother, and about my friend that I've already mentioned. So I think you always need people around you to inspire. There are people around me who always comfort me and they make me feel like nothing is wrong. It's just too much to handle. And after a certain point of time, I usually manage it out. हाँ, ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है ऐसा। तो मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता हूँ चीज़ों के बारे में। तो मैं कभी कभी लिखने के लिए, क्योंकि मुझे पता होता है कि उस टाइम लिखना है मुझे, तो मैं उस टाइम लिखने के लिए खुद के मन को अशांत करता हूँ, परेशान करता हूँ खुद को, जिससे मैं लिख पाऊँ अच्छा, दुखी करता हूँ खुद को मैं जानबूझ के। क्योंकि जब तक मैं दुखी नहीं होऊंगा, जब तक मैं किसी बात पे सोचूंगा नहीं, तब तक मैं लिख नहीं पाऊंगा। दुखी इन द सेंस कि मतलब उस दुख का मतलब ये है कि किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं मैं। तो सोचने के बाद मुझे वर्ड्स मिलेंगे, एक लय मिलेगा, जो मुझे लिखने के लिए मोटिवेट करेगा। तो मैं उस वे में उसको देखता हूँ कि ओवरथिंक करना मेरे को जरूरी पड़ जाता है कभी कभी, जिससे मैं कभी भी मतलब वर्ड्स में रुकू ना, कभी बीच में कभी फ्लो टूटे ना मैं लिखते वक्त। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी, तो कुछ कुछ मैं भी कभी जब मेरी नोट्स को खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने आधी अधूरी पोएम्स छोड़ रखी है, जिनको लिख के भूल गया मैं। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कि वापस से उसको करूँ। तो एक टाइम देना पड़ता है अपने आप को, जिससे हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सोच सकें। और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जब लिखने बैठे तो आप जबरदस्ती लिखने बैठे, जब आपका मन करे तब लिखने बैठे। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और ऐसा होता है, जो भी लिखते हैं या पेंटर्स, हर जॉनर में ऐसा होता है। बात करते हैं हम भाषा की, या पढ़ने की। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। खुश या सभ्या, आपने जब शुरू किया होगा लिखना, उससे पहले जरूरी होता पढ़ना। किन लोगों को पढ़ा हो आपने और उनका लेखन अच्छा लगा? हम बेहतर पढ़ के बेहतर लिख पा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं पहले से आप बेहतर लिख रहे हैं। ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ हो या कोई? हाँ, जैसे मैं, महाभारत एक सीरीज है मेरी पूरी, जिस पे मैं बहुत सारी पोएम्स लिख रहा हूँ। बट मोस्टली क्या होता है ना कि वो बहुत डिस्क्रिप्टिव चली जाती है, वो कभी भी एक गीत के रूप में नहीं आती है। और जब तक एक कविता गीत के रूप में ना बोली जाए तब तक वो कविता नहीं लगती है। लोगों का ऐसा मानना होता है, बट ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का। बट फिर भी, जैसे एक रश्मि रथी नाम की बहुत बड़ी काव्य ग्रंथ है, जिसमें बहुत सारी कविताएं, जब मैंने पहली बार उनको देखा तो मैं खुद को बहुत ही इन्फीरियर फील कर रहा था कि मैं क्या ही लिख रहा हूँ, मुझे ये compete करना है। तो मुझे उन कविताओं को पढ़ के लगा कि मेरा लेवल मुझे बहुत ज्यादा बढ़ाना है अभी। और दूसरा, ये तो हो गया महाभारत की जो मेरी सीरीज है उसके बारे में। ऐसे ही एक और जो कवि हैं जिनका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। तो शिव मंगल सिंह सुमन जो है, उन्होंने एक मरघट नाम की कविता लिखी थी, जिसकी कुछ लाइंस ऐसे थी कि वो देखो गंगा के तट पर धधक रही मरघट की ज्वाला। तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लो में कविता थी, और ये मैंने मणिकर्णिका लिखने के बाद देखी थी। तो मुझे लगा कि मुझे अभी भी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। तो शुरुआत जो थी वो खुद के थॉट से हुई थी, बट
इंस्पिरेशन जो है धीरे धीरे बड़े बड़े कवियों से लेनी पड़ती है, जिससे हम अच्छा खुद को रिफाइन कर पाए। ये बिल्कुल सही बोला आपने, इंस्पिरेशन बड़े बड़े कवियों से लेनी पड़ती है जिससे कि हम खुद को रिफाइन कर पाए। सभ्या, आपसे बात करते हैं, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी को देख कर पढ़ के लगा दिस इज द लेवल आई शुड अचीव? Actually, I am from literature background, of course. So I have read so many authors, so many poets, but basically I hail from English as my major, but I have read Hindi authors like Dhanveer Bharti, Premchand, Harivansh Rai Bachchan, and all of that. And when I read them, I realize ki the way they are writing, there is a rhyming scheme, there is a way they are interpreting their thoughts. And one of the philosophers, or you can say the poet, not the poet, she's a philosopher who has inspired me a lot. That is Mary Aston. And Mary Astor basically talks about the role of women in the field of sciences, in the field of philosophers, that how come women have got the wrong training since childhood, that you have to go, just go, get up, get ready, you have to fetch a husband for yourself. And she interprets all of that things. And whenever I feel like that I want to write something, I always want to be Mary Astor. I really want to write like her. She's my top inspiration. ओके, सभ्या, आपने मेंशन किया आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, आप हिंदी में लिखना पसंद करती हैं। लोगों का रिएक्शन कुछ तो होगा कि अरे ये एकदम स्विच अचानक से चेंज, इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में क्यों नहीं लिखते, या फिर अगर हिंदी में लिखते हो तो लिख कैसे पाते हो, आई मीन अच्छा लिखते हो, और हिंदी बैकग्राउंड से क्यों नहीं हो फिर? कोई कोई एक्सपीरियंस आपका ऐसा? There's an experience. I have been to some school for some NSS program, and there was some competition and all, and they have asked me ki if your major domain in English, that how come you're writing in Hindi? And at that time, the first thought that have come to my mind is that because I'm an Indian, and since my childhood, the only language that has been applied to me was Hindi. Hailing from a city of Ayodhya, Hindi is being very central to my life. I have read bhajans, I have read all of the books, and all of that things. So I write in Hindi because I feel that Hindi is the language of masses. Of course, not globally, of course, not all over India, not a pan Indian language, but the crowd that I am dealing with daily, the crowd that I am mingling up, there are many people who cannot understand English, but there are billions of them who can understand Hindi, can relate with my thoughts, and can appreciate me. Also, I firmly believe in my thoughts that Hindi is a language of expression. The impression that Hindi vocabulary leave on people is not always necessary that English does. So that's why I love to write in Hindi, and I always keep on refining my Hindi vocabulary more than English, because English is my domain. I can learn it from any text, but Hindi is not my domain. So I never want to leave my Hindi side, because that's what I am. My cultured side is my Hindi language. That's why I always write in Hindi. Whenever I try to write something, I incorporate Hindi words to that. It's so sweet that you mentioned Hindi is your language of expression, and English में you can do the I impression can job, deal right? with it. Yeah, I can deal with it. Yes. तो जब बात आती है हिंदी इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ ऑल ऑफ इंडिया, आजकल और पहले से होता आ रहा है, ट्रांसलेशन होते हैं, है ना? साहित्यिक अनुवाद करना बहुत मुश्किल है, तो क्या कैसा लगेगा खुश आपको अगर आपकी कविताओं का अनुवाद होता है तो? पहली बात तो ये थॉट ही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कोई अनुवादक मेरी कविताओं को अनुवाद कर रहा है। और दूसरा ये कि मैं चाहूंगा कि मेरी कविताएं जो हैं वो हिंदी में ही रहें, क्योंकि मैं जो मेरी कविताएं हैं उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह इन पे पोस्ट करता हूँ। तो एक हर एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो मेरी कविताओं को पढ़ते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि एक लैंग्वेज बैरियर आए किसी के बीच में, क्योंकि बहुत मोस्टली जो लोग जो पढ़ते हैं मुझे, वो सारे हिंदी अपनी मेन लैंग्वेज के हिसाब से उसको देखते हैं। अगर मैं इंग्लिश में लिखना, ट्रांसलेट करवाना चाहूँ तो मेरे को एक अलग ऑडियंस मिलेगी, जो कि मेरी पहले से प्री एस्टेब्लिश्ड ऑडियंस तोड़ सकती है। तो मैं चाहूंगा कि मेरी कविताएं हमेशा हिंदी में ही रहें और मैं उस हिंदी में ही जो है आगे बढ़ूं कविताओं को लेके। It's a big thing, of course. If somebody is translating my task, somebody is translating my work, whatever I'm writing is a big thing. It's a big thing to even think of as a poet. And I would definitely love if somebody is translating. And I think language should never be a barrier. So even if somebody is translating my poems in English, in German, or in any other language, it will work for me.
Like being a student of English, I have also translated certain texts in German language just to refine my German vocabulary. So it's always a fun if people are translating my works, and it would be a pleasure if they are translating my work, breaking the language barrier, and the whole crowd is able to get that even into a different language. The justice for my work will depend on how good the translator is. Rest is into their hands. Know how your life and your poetry go hand in hand. Are they different or are they all together? Whatever I'm writing is the replica of my what is actually happening in my life. For example, if I'm writing a poem on love, it's because that since my childhood I have seen that love is hope. If you want to create a home, love should always be there. It defines my feeling that how sensitive I am towards, how compassionate, how kind I personally feel towards animals. If I'm writing on global issues, if I'm writing on feminism, so being a feminist in this patriarchal society gives me the courage to write about it. So whatever I'm writing is always something that has happened with me, and I'm the first hand experienced person of that. It's but whenever I'm writing something, I always related to it in one way or other. For example, the poem that I've just said about interreligion love story, it's not my love story, but it's the love story of someone who's very close to me. So whenever I write something, it's always a replica of something that is happening in my life personally. नॉट कम्प्लीटली, बहुत हद तक है ये चीज कि जो मेरे आसपास होता है मैं उसी को लिखता हूँ एक तरह से। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे एक्सपीरियंस जो होता है वो ऐसे मिलता है मुझे, जो एक फीडबैक टाइप का होता है, जो कि ओपन माइक्स में जाने से मिलता है कि किस टाइप की ऑडियंस आपके साथ एंगेज करती है। तो वैसे बाय गॉड्स ग्रेस मैं काफ़ी अच्छी ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस कभी लाइफ में हुई नहीं है। बट जो वहाँ पे लोग आते हैं उनको थोड़ा सा मिडिल क्लास स्ट्रगल जो होता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई पोइम कोई कोई पोएट आके सुनाता है कुछ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अपने लेखन को डाइवर्स करने के लिए एक तरह से कभी कभी उनके पर्सपेक्टिव से सोच के लिखना पड़ता है कि वो कैसा सोच, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो उससे मुझे एक नया पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है और उसको लिखता हूँ मैं, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता है। से आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे भी प्रेरणा लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सर्टिफिकेट या मान्यता जब मिलती है कहीं से भी, ये बहुत बड़ी बात है, खासकर जब हम शुरू कर रहे हैं। सभ्य, आपके जीवन के बारे में बात करते हैं। आपकी कोई स्पेशल रिकग्निशन? My first event was my NSS program. I have been an NSS volunteer. So there was some other institute that is NSS MSI, Maharaja Surajmal Institute. And I was selected and appreciated there as a best narrator, best orator, and as a best poet. So I got 3 consecutive certificate at once. And it was such a big achievement because they have loved my poetry. They have loved the way I orated, and they have also loved my thought processing, and the way I have, narrated that thing. So that was the first certificate that I've got for writing, for speaking, for narrating poetry. And it has set the benchmark for me that yes, I can do something in my life. I can do something in the field of poems, poetry. And that's how I went ahead with all of that. That was my first benchmark. ऐसे ही 2024 का नेक्सस इवेंट हुआ था, जिसमें पैट्रिक और एक सोसाइटी है जिन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ पे जो थे, एक दूसरी यूनिवर्सिटी से एक मैम वहाँ पे जज थी उसमें। तो मैं उस कंपटीशन में जीता नहीं कुछ भी, ना मुझे फर्स्ट रैंक आई, ना सेकंड आई, ना थर्ड आई। मुझे लगा था कि वो काफी अच्छी है पोएम, उससे मैं जीत सकता हूँ कुछ, मतलब मेरा उससे नाम बोला जा सकता है, मुझे पहचाना जा सकता है उससे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि जब थर्ड आया, जब थर्ड के लिए अनाउंसमेंट हुई कि थर्ड कौन है, तो मेरा नाम नहीं था उसमें। फिर सेकंड के लिए हुई तो उसमें भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद फर्स्ट आया हूँ मैं, तो फर्स्ट भी नहीं आया मैं। बट उसके बाद में जब स्टेज पर मैम आई, उन्होंने स्पेशली मुझे मेंशन किया पूरी भीड़ में कि दैट गाय इन ग्रीन कुर्ता, ही राइट्स अमेजिंग। उन्होंने सीधा ये कहा कि इसकी मैच्योरिटी देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये इसने लिखी है पोएम। तो मुझे वो चीज सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि वो खुद हिंदी लिटरेचर से थी मैम, तो उन्होंने मुझे मेंशन किया पूरी भीड़ में, तो पूरी भीड़ मुझे देखने लग गई थी। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही प्राउड मोमेंट था कि मैंने क्या लिख दिया ऐसा। जितना हमें सुन के अच्छा लग रहा है, उतना आपको वहां मौजूद होकर अच्छा लगा होगा कि वाकई में भीड़ पूरी मुड़ गई मेरी तरफ। और स्पेशल रिकग्निशन ऐसे जब मिलता है तो
इट फील्स रियली इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग की बात करते हुए क्या आपके राइटिंग्स हैं, आप दोनों कवि हैं, लोग आपको पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे, क्या चाहेंगे आप, लोग आपको कैसे याद रखें? एक So I just want this world to remember me as a kind soul and as a person who was always wanted to be others' comfort space. Because in this world of mental struggling, I don't want to be anything, but I just want to be a comfort space for others, be it humans, be it animals. I just want this world to remember me with my identity as a dog lover, as the one who adores nature, and of course, the one who always wanted to be the comfort space for others, providing them peace and serenity. Sounds very sweet. Same question for you, खुश, कहना चाहेंगे आप, how should world remember you? सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से ये है कि एक कवि जो होता है, अगर वो एक कवि है तो वो सच में ही बहुत उम्दा इंसान है। साहित्य जो होता है उसमें वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनका मकसद प्यार बांटना होता है, नफरत बांटना नहीं। पर मैं ये मानता हूँ कि जब तक हमारी कविताओं में प्यार की बात नहीं होगी, इंसानियत की, अच्छे कर्म की बात नहीं होगी, धर्म स्थापन की बात नहीं होगी, तो हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि यही एक बेंचमार्क है जो कि आगे की जनरेशन्स को मोटिवेट करेगा कि हाँ, हम अच्छे काम करने से भी आगे इंसान बढ़ सकता है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद रखें कि मैं बिल्कुल दिल का सरल इंसान था, सहनशील स्वभाव था, कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दे, ऐसे टाइप का। क्योंकि मैं गांधी को बहुत मानता हूँ तो मैं उनकी आइडियोलॉजीज फॉलो करता हूँ। कभी सभ्या, आप अपनी कोई कविता सुनाना चाहेंगी अभी? I've written it for my brother, and it's related to the fraternal love, the fraternity that we want around us, and how come our brothers are like our sole supporters and everything. So it's my love, as my main theme is always love. It's a love of a sister towards her brother who lives very far away from her. So it goes like, the title of the poem is Bhrata Shri Ka Pad, and it goes like, शरद रात्रि सी शीतलता, पुष्प सुमन सी कोमलता है, दृढ़ निश्चय है सूर्य के जैसा, चंद्रमा सी सुंदरता है, अपनों में वह सबसे योग्य है सबसे ऊंचे पद पर, माता श्री का पद है उसका, गर्व है मुझे उस पर, खुद की मेहनत खुद की हिम्मत, ना जाने उसे कहाँ ले जाएगी, ना जाने जीवन उसका कितनी कठिनाइयों से गुजरेगा, न जाने किस्मत उसकी क्या क्या परीक्षाएं करवाएगी, बिन पैसे का उसका मूल नहीं पुरुष श्रेणी में आता है, दिन रात बस अपनों के बारे में सोचकर वो खुद को कष्ट पहुंचाता है, चाहता है छूना ऊंचाइयों को, खुशियों को घर बुलाता है, भ्राता होने का वो दृढ़ संकल्प निभाता है, माता पिता का बेहतर जीवन उसका पहला सपना है, बहन की शादी उसका सुखी परिवार उसके सपने पहले हैं, बाद में रखता है वो खुद को, बड़ा ही निस्वार्थी जीव है, सूर्य पुत्र कर्ण से भी ज्यादा तप और तपस्या है, शरद रात्रि सी कोमलता शीतलता है उसमें, पुष्प सुमन सी कोमलता है, दृढ़ निश्चय है सूर्य के जैसा, चंद्रमा सी सुंदर। ये मैंने कल रात ही लिखी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको रिकॉग्निशन मिलता है कहीं पे तो ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो ये मैंने इसका जो कंटेक्स्ट है वो ऐसा है कि अगर भगवान और इंसान में बात हो तो वो कैसी बात होगी। तो इंसान जो है वो बोलेगा कि न राम जितनी मर्यादा, न कृष्ण जितना ज्ञान, न अल्लाह जितना पाक मैं, न मैं गुणों की खान, न यीशु जैसा पापहीन, न बुद्ध सा गुणवान, न जैन जितना त्यागशील, न सिख जैसी शान। तो क्या है समुदाय मेरा, किस धर्म से हूं मैं आखिर, सर पर पगड़ी बांधे फिरते वे अति बलवान, लोभ लालच में फंसा मैं मूर्ख सा बेजान, न सुराह का अता पता न श्लोक का विज्ञान, बस यूं ही अकड़ता हूं मैं मूर्ख बुद्धिमान, न गुरुबाणी को रुकता मैं, न सजदे में हूं झुकता मैं, कुछ आता है अगर मुझको तो बस रेलियों में गुणगान। तो क्या है समुदाय मेरा, किस धर्म से हूं मैं आखिर। तो इस पे भगवान उसको बोलते हैं, बस सीख जा तू प्यार करना और धर्म से अनजान, न राम हूं न अल्लाह मैं, न यीशु मैं हूं बस भगवान, न मूरत में न सूरत में न चादर में ओ अनजान, मैं हूं सभी में वो जो है एक नेक दिल इंसान, चादर तू न दे मुझे न दूध की प्यास कोई, दे दे ये सब कुछ अगर जो एक भिक्षुक पास कोई, करुणा दिखा बढ़ता जा करुणा में ही बसता मैं, तेरे 10 रुपए से मान जाऊं इतना भी नहीं सस्ता मैं, जो राम अल्लाह नाम लेकर तूने मुझे फंसाया है, वो मासूमों के दिलों में दहशत का घर बसाया है,
अब तू ही उनको बनकर दिखा एक नेक दिल इंसान, देख ना दिखेगा उनको तुझ में भी भगवान। हम आ चुके हैं अपने बातचीत के अंत की ओर, और आखिर खत्म करते करते आप दोनों से एक सवाल है मेरा। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारी जनरेशन में और आगे भी होंगे, बहुत अच्छा लिखते हैं पर थोड़ा झिझकते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुश क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जस्ट टू गेट स्टार्टेड। वैसे तो मैं अभी इतना खुद को सक्षम नहीं मानता कि मैं किसी को संदेश दे सकूं, बट फिर भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये मानता हूं कि आप कितने भी अच्छे हो, अगर कोयला हीरे मतलब हीरा अगर कोयले के बीच पड़ा है तो वो काला ही रह जाएगा। तो इसीलिए जो दोस्त लोग होते हैं, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, ऐसे चुने आप जो कि आपके जैसे ही हो, आपके रुचियों से मेल खाते हो, उनको इंटरेस्ट हो आपके इन लेखन में। जैसे एक ओपन माइक में एक बहुत ही बुजुर्ग एक कंचन दा नाम के अंकल हैं, जिनसे मैंने कुछ रिव्यू मांगा था, क्योंकि बहुत बड़े हैं, काफ़ी टाइम से लिख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमेशा ये फोकस रखना कि तुम लिखो ऐसा कि तुम उसको गीत की तरह पढ़ पाओ। तो देख ना दिखेगा उनको तुझ में भी भगवान, तो ये गीत की तरह बोला जा सकता है। तो ये मेरा अचीवमेंट है कि मैंने कविताएं इस तरह से ढाली हैं कि मैं अब इसको गीत की तरह पढ़ सकता हूँ। अभी ये इतने लेवल पे नहीं है कि मैं इसको सोचूं कि हाँ मैं हो गया, इससे भी ज़्यादा अचीव होता है जो एक फ्लो आता है वो। और उन्होंने उन्होंने ये भी बात कही कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे वर्ड लिखो कविता में, कम लिखो, इम्पैक्टफुल लिखो। अगर आप सब कुछ बता दोगे उनको तो पाठक जो होंगे वो क्या करेंगे फिर उसमें? उनके लिए कुछ सोचने के लिए छोड़ो। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। So, just a tidbit of advice is that always show your piece to someone who adores. So, I think if whosoever is writing, the first thing is that they should have the courage. Ki, yes, I will write, because writing is a beautiful form of expression and impression. And if you're writing it, if you want to show the piece to someone, just show it to your best supporter. It can be your mother, it can be your father, it can be your sister, anybody, but never to the people who dislike you. And if you can see that there are people around you who are, somehow they have the optimistic, somehow you have the pessimistic energy, so you should never show your work to them. Always go and pave the doors of optimism. Then you land at somewhere where you can't even think of yourself. Optimism is very important. Such a beautiful, optimistic message, Sabya. Okay, Sabya, okay, खुश. With this, we come to the end of our conversation. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप यहाँ पे आए और अपने आर्ट फॉर्म के बारे में बात की। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आगे आप ऐसे ही बढ़ते रहिए दोनों, ऐसी आपकी कविताएं हमें सुनने को मिले, हमें पढ़ने को मिले, और आगे आने वाली सभी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाय आद्यांतरा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।